Seed B, Grade A, Grade B vacancy is out, and the course acknowledged has also started. So, if you are looking to prepare for banking, lateral entry, or specialist officers in a credit role, then this job is for you. There is a great overlap of content if you are preparing for SBI CBO, PNBSO, Credit Officer, RRB Scale 2, Scale 3. Then, by preparing this exam, you are covering the syllabus of both these two exams. So don't waste your time here and there. Now time is to enjoy the sample session uploaded in your channel. Post that, you can go to the comment section, description section, our website, application to find out the course link. Enjoy. Which of the following is not correct regarding the project cost in case of PMEGP scheme? बताइए, आंसर करिए मेरे साथ। इनमें से कौन सा पीएमईजीपी स्कीम के बारे में सही नहीं है? प्रोजेक्ट कॉस्ट विल इंक्लूड कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड वन साइकिल ऑफ वर्किंग कैपिटल. प्रोजेक्ट विदाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर आर नॉट एलिजिबल फॉर फाइनेंसिंग अंडर द स्कीम. Project costing more than 5 lakh not required working capital, need clearance from your regional office, or none of these. Please go ahead and answer. क्यों ऐसा बोल रहे हैं डी? क्योंकि बाकी तीनों, और किसी ने आंसर नहीं दिया, बाकी तीनों सही है, राइट? प्रोजेक्ट कॉस्ट विल इंक्लूड कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस वन साइकिल ऑफ वर्किंग कैपिटल. Project without capital expenditure are not eligible for financing. Projects costing more than rupees 5 lakh not requiring working capital need clearance from RO. ठीक है? Which of the following is correct regarding training of beneficiaries under PMEGP? First installment of loan will be released only after completion of EDP training of at least 2 weeks. Second, if beneficiary has undergone training from the recognized institution, no further EDP training is required. Yes, it is only 2. If beneficiary has undergone training from the recognized institution, then no further EDP training is required. ठीक है? बिल्कुल. Advances to manufacturing units which are classified as medium enterprises fall under which category? मुझे लगा कि फटाफट आप सब आंसर करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, B is the right answer. Non-priority sector and C&I advances. C&I advance क्या है? C&I advances का फुल फॉर्म क्या है? C&I advance क्या है? नॉन प्रायोरिटी सेक्टर वाला C&I एडवांस कैसे है? कोई बड़ा फुल फॉर्म नहीं है, कोई जार्गन नहीं है, बट बैंक में होता है ना, रिटेल लोन, होलसेल लोन, उसी तरह से C&I लोन होता है. तो ये C&I लोन क्या होता है? लास्ट हमने स्लाइड रख लिया क्योंकि हमें लगा कि आप सब बैंकर हैं, तो C&I भी तो आपको समझ में आ चुका होगा. यस यस यस, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल लोन, नॉट कॉर्पोरेट एंड इंडस्ट्री. यहीं पे तो थोड़ा बहुत छोटा सा मिस्टेक भी दिक्कत कर सकता है. ठीक है? कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल लोन. Which authority is responsible for approving compromise settlements involving fraud and willful defaulters? कोई बाहर का क्वेश्चन है क्या? Do you think any of this question is irrelevant? अच्छा, willful defaulter आपका बोर्ड अप्रूव करेगा. ठीक है? ठीक है? ये नया आरबीआई का गाइडलाइन है. ये नया आरबीआई का गाइडलाइन है.
Okay, in case of borrowers classified as fraud or willful defaulter, how long are they debarred from availing bank finance under full payment of the defrauded amount? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना आपको? मैं इसीलिए नहीं समझा रहा हूं। क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है ना? तो अगर बोरोवर क्लासिफाइड एज फ्रॉड और विलफुल डिफॉल्टर होगा तो कितने साल के लिए डिबार होगा? 5 साल के लिए। ओके, अच्छा ये कहानी बताइए क्या है? आरबीआई सर्कुलर, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द कूलिंग पीरियड? ये जो नॉर्मल अभी 1 साल हुआ है, 6 7 8 महीने हुए हैं, इंट्रोड्यूस हुआ है कूलिंग पीरियड फॉर नॉर्मल केसेस ऑफ कंप्रोमाइज सेटलमेंट। एक बार कंप्रोमाइज सेटलमेंट हुआ तो उसके बाद उनको कितना गैप, मिनिमम एक गैप देंगे, कूलिंग पीरियड उसे कहेंगे। ठीक है, कभी कभी आप केस जब आप बैंक ज्वाइन करते हो एक पॉइंट वहां पे आता है कि आफ्टर योर रेजिग्नेशन देयर विल बी ए कूलिंग पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, और विद इन दैट 6 मंथ यू शुड नॉट ज्वाइन आवर कॉम्पिटिटर। पहले वो बैंक्स में थे, मतलब हर कोई तो कॉम्पिटिटर्स ज्वाइन करने के लिए ही छोड़ता है, राइट? बट कूलिंग पीरियड ये केस में 12 मंथ्स है। वेरी गुड। दिस वॉज जस्ट ए सैम्पल सेशन। ये एक सैम्पल सेशन ही था, कंप्लीट सेशन, और पूरे सिलेबस के लिए आपको रजिस्टर करना होगा नॉलेजिस्ट के डेडिकेटेड कोर्स से। कोर्स का लिंक एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन, ऑल्सो इन योर एप्लीकेशन एंड इन योर वेबसाइट। सो डोंट हेजिटेट टू ज्वाइन फ्रॉम देयर। थैंक यू।